Hello and welcome all. We have Babar Azam, Pakistan's test captain here with us. And Babar has been kind enough to take time out for this pre-series press conference. The Australia-Pakistan test series, in fact, the Pakistan-Australia Benu Qadir Trophy starts tomorrow in Rawalpindi. Unfortunately, today's practice has been cancelled because of the rain in Rawalpindi, Islamabad. I'll ask my colleagues from Australia to go ahead and they can have the first two questions. We'll have the questions in English. Then we'll take a statement from Babar in Urdu, and then we'll move on to Urdu. So questions in English first, please. Melinda, I believe you want to go first? Sure. Thank you very much, Ahmad, and thank you, Baba. I guess, Jay, it's been an interesting one in that there has been so much attention focused on the Australian team. So how's this week been for you? You've been under the radar almost with them being sort of under so much attention. Definitely. हम काफ़ी एक्साइटेड हैं और जिस तरह 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया टीम आई है और हमने जिस तरह प्रिपरेशन किया हमारे जो टेस्ट के प्लेयर्स हैं उन्होंने कराची में अपना कैंप लगा था और उसमें उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी खेला और टेस्ट की पूरी तैयारी की और उसके बाद जब हमने ज्वाइन किया तो हमने भी 3 दिन यहाँ पे पूरा यूटिलाइज किया पूरा फोकस के साथ और बिल्कुल हमारे काफ़ी अच्छे मैचेस होंगे और हम पूरा फोकस होके और पूरा हमारी जो So yes, I'll now translate this. Babar said that, of course, we are very excited that Australia are over. We have practiced really hard, starting off in Karachi with a camp there for test players, followed by the preparations here in Rawalpindi, and things are pretty much heading in the right direction. Of course, it's not the case that Australia, of course, they are here. There's a lot of attention, yes, but that doesn't mean that the home side is very much, or if I can coach you under the radar, they have prepared well. They know the significance of this series, and that's why the players are excited. They want to play Australia. They have prepared well, both in Karachi and Rawalpindi, and are looking forward to the series. Melinda, I hope this helps. Yes, thank you very, very much. Okay. Peter Layler, if you have a question. Yes, I do. Thank you for asking. Do you have a team for us? Can you name the team? Babar, I believe team तो हमारी final नहीं है वो आप उनको कह सकते हैं कि we are still preparing the combination. Please. Yeah, we are not preparing yet. So we are deciding tomorrow when we see pitch again and then decide it. Can I just ask you, do you think? Yeah, can I just ask, do you think that pace is more important on this wicket than on other wickets in Pakistan? जी बाबर, वो पूछ रहे हैं कि क्या पेस का ज्यादा आपको लगता है रोल होता है इस पिच पे कंपेयर टू अदर वेन्यूज पाकिस्तान की? क्या फास्ट बॉलर्स ज्यादा पिंडी में साजगार होते हैं? डेफिनेटली थोड़ा सा मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है और यहाँ पे पिंडी में थोड़ा सा पेस को थोड़ा सा हेल्प मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पिनर्स का भी काफी अहम रोल होता है, तो मेरे ख्याल से दोनों को कंबाइन So, thank you, Babar. He's saying that yes, pace might have a role, but it's a good wicket generally, which helps both pace bowlers and spinners, as well as it's a good batting track. So not out and out a question of pace maybe being favored here in Pindi. I hope this helps, Peter. Thank you very much. Welcome. Okay, now we'll move on to Urdu questions, and before that, I'll request Babar to provide his opening statement. Babar से मैं सवाल कर लेता हूँ. बाबर, कुछ बताएं प्रिपरेशंस के बारे में. कराची में ऑफ कोर्स टेस्ट प्लेयर्स का कैंप लगा काफी एक्सटेंसिव, फिर आप लोग सारे यहाँ पे रावलपिंडी में आए. पिछले 3 दिन से बहुत मेहनत की है. 3 साढ़े तीन घंटे के हमारे सेशंस हुए हैं. कुछ बताइए तैयारी कैसी है, फ्रेम ऑफ माइंड है, और ऑफ कोर्स ये एक बड़ी सीरीज है, तो आपका माइंडसेट क्या है और टीम का क्या माइंडसेट है? बिल्कुल माद भाई, जिस तरह हमारी प्रिपरेशन हुई है, जिस तरह टेस्ट प्लेयर्स ने कराची में कैंप लगा, उनका वहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी खेला और जितना हो सके हुआ कि उन्होंने कंडीशन को यूटिलाइज किया और होम कंडीशंस हैं
और उसके बाद फिर हम जब यहाँ पे ज्वाइन किया तो हमने भी काफ़ी इस चीज़ को इसकी, जितने भी हमारे पास आपको डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए होता है, डिफरेंट आपकी सोच होती है, डिफरेंट आपको बैटिंग करनी पड़ती है, डिफरेंट बॉलिंग करनी पड़ती है, तो उसी को हम थोड़ा सा ज़्यादा हमने टाइम लिया थोड़ा सा, क्योंकि T20 से आए थे तो हमने, हमारे पास 3-4 दिन थे तो हमने उसको यूटिलाइज किया और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन गुड शेप पूरी टीम, और पूरा बिलीव है और काफ़ी एक्साइटेड हैं और टफ मैचेस होंगे। जिस तरह हमारा मोमेंटम चलता आ रहा है पिछले जो टेस्ट मैच में हम बांग्लादेश खेल के हैं, उसी मोमेंटम को हम लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी होम कंडीशन को यूटिलाइज करें और टफ टाइम दें। और दूसरा ये कि बिल्कुल हमारा थोड़ा सा पिछला वीक हमारे जो मेन प्लेयर्स है थोड़ा वो जिसके शिकार कोई कोरोना का लाइव है तो ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। तो मेरे ख्याल से जितना एज अ टीम, एज अ कप्तान मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और बिलीव है मुझे कि इंशाल्लाह ये चीज़ों को हम साइड पर रख के हम फोकस करें क्रिकेट को, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हम फोकस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच बाबर। वील मूव ऑन विद द क्वेश्चंस। और आई थिंक आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा बाबर खुद भी ऑलराउंडर बन गए, जिस तरीके से वो ऑफ स्पिन करें, यू नेवर नो कि इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। थैंक यू सो मच बाबर। मैं उर्दू के क्वेश्चंस अब लूंगा। रशीद शकूर सबसे पहले, उसके बाद जाहिद फारूक मलिक, फिर माजिद भाई। जी रशीद भाई। रशीद भाई आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है जी। मैं ये कह रहा था बाबर के, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ बाबर, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि बांग्लादेश के खिलाफ जो जीत थी उस मोमेंटम को लेकर चलेंगे, लेकिन बीच में पूरा एक महीना एक डिफरेंट फॉर्मेट आप उसमें इन्वॉल्व रहे, मतलब पाकिस्तान के सारे क्रिकेटर्स, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है कि एक पूरा महीना एक पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ आप एक फॉर्मेट खेल रहे हैं T20, और अब फिर मतलब कुछ दिनों के बाद फिर आप उसी टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में आएंगे, तो ये कितना डिफिकल्ट किसी भी खिलाड़ी के लिए और एज ए कैप्टन। और दूसरा मतलब जिस तरह की PSL आपके लिए कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही बहैसियत कप्तान भी, तो वो प्रेशर से खुद किस तरह आप निकलने के बारे में कॉन्फिडेंट? थैंक यू। देखें, एज अ प्रोफेशनल आपको डिफिकल्ट नहीं होती, क्योंकि आपके पास पूरा शेड्यूल, पूरा ईयर का शेड्यूल होता है, और जिस तरह हमारी बैक टू बैक सीरीज और ये PSL चल रहा है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, फिर हमारा PSL है और उसके बाद हमारे पास ये टेस्ट सीरीज है। तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल आपको एज ऐसा कोई मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होती, सिर्फ माइंडसेट की गेम है। और जितने भी प्लेयर्स हैं सबको पता था कि हमारे टेस्ट मैचेस आ रहे हैं, उसके लिए वो प्रिपेयर भी हुए हैं। वो ड्यूरिंग PSL इस चीज़ की भी प्रिपरेशन हो रही थी कि जहाँ पे वो हम अगर बात करें फास्ट बॉलर की, जहां वो 4 ओवर कर रहे थे, वो अपनी प्रैक्टिस में वो 6 ओवर कर रहे थे या 7 ओवर कर रहे थे कि प्रिपरेशन हो हमारी टेस्ट मैच में। जब हम टेस्ट मैच में आए तो उस चीज़ के लिए हम रेडी हों। तो ये सब फास्ट बॉलर्स ने, बैट्समैनों ने अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की है। तो ये साथ साथ चीज़ें चलती रही हैं, क्योंकि अब देखें क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जितना आप इसको उसमें मेरे ख्याल से फिटनेस का भी काफ़ी है कि अपने आप को फिट रखेंगे। बैक टू बैक सीरीज आ रही है, तो मेरे ख्याल से लड़के प्रिपेयर हैं और रेडी हैं। देखें, दूसरा ये कि मुझे ऐसा कोई फील नहीं है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ। और पास में मैं फ्यूचर में रहता हूँ, जो गुजर की चीज़ें उसको मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता। जो गुजर गया, जो आने वाला है उस पर मैं फोकस करता हूँ। थैंक यू बाबर। जाहिद फारूक मलिक, फिर माजिद भट्टी प्लीज। सबसे पहले तो कैप्टन गुड मॉर्निंग। और दूसरा ये कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है एक ऐसी लेगेसी के साथ कि वो उसने इंग्लैंड को हराया है। आप लोगों को होम ग्राउंड का एडवांटेज तो है, बट आप यू आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना प्रॉब्लम्स एंड फिटनेस प्रॉब्लम, तो ये चीज हैवी तो नहीं होगी। और आप नंबर 1 भी हैं और प्राउड भी है पाकिस्तान का। अपनी फॉर्म के बारे में भी जरा कौम को बता दें। जी बिल्कुल। देखें, जिस तरह कोविड के केसेस चले हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया, फिटनेस का भी इशू चला है, लेकिन ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। और मेरे ख्याल से इसमें जितना हमारे पास बेस्ट 11 होगी या बेस्ट प्लेयर्स होंगे, हमको उसको यूटिलाइज करेंगे
और इस पे हम ये नहीं है कि ये वो प्लेयर नहीं है तो क्या होगा, या ये नहीं है तो फिर क्या होगा। मैं एज अ कप्तान पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और पूरा बिलीव है मुझे कि पूरी टीम पे कि मेरे पास बेस्ट 11 होगी और उससे हम फाइट करेंगे। परफॉर्मेंस की कॉम्बिनेशन के साथ जाना है फाइनल तक। चला सुबह जाके देखेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज बारिश हो गई और जिसकी वजह से हम ग्राउंड नहीं जा पाए, तो हम जाके ग्राउंड में देखेंगे और फिर जी सवाल करूं? माजिद भाई। जी जी इमाद जी सवाल कर लें प्लीज। नहीं मैंने नहीं, ये अब्बास से भी बीच में पूछ रहा है, मेरा हो गया। थैंक यू। अच्छा सॉरी जी, मेरा कनेक्शन थोड़ा वो हो रहा है। अब्बास करें आप जी। जी थैंक यू वेरी मच अमाद, थैंक यू वेरी मच बाबर। इससे पहले आप टेस्ट क्रिकेट खेले, आपके जो कोचेस थे वो मिसबा थे, वकार थे, डिफरेंट कोचेस के साथ आप नई सीरीज खेलने जा रहे हैं, एक बड़ी सीरीज खेलने जा रहे हैं, कोई चेंज महसूस हो रहा है? और कौन से कोचेस ज्यादा काम कर रहे हैं आपकी फिटनेस के ऊपर? दोबारा से देखें, बैड पैच तो पूरी दुनिया में हर प्लेयर पर आता है, उसकी वापसी के लिए क्या काम हो रहा है? देखें, कोचिंग स्टाफ जो भी होता है वो अपना 100% देता है। इनके जो भी एरा आया और उसने अपना 100% दिया, और इस जो अभी कोचिंग स्टाफ है वो भी अपना 100% दे रही है, और सबका मोटिव यही होता है कि पाकिस्तान जीते। तो उसमें जो भी है, हम प्लेयर्स भी यही हमारा मोटिव होता है, यही हमारा फोकस यही होता है कि हमने बेस्ट कैसे देना है, और कोचेस से भी यही होता है कि हम प्लेयरों को रेडी करें और वो अपना बेस्ट दें, और जो भी एरा में सब इकट्ठे रहना और सबका बिलीफ एक ही होता है। अच्छा तो जी, बिल्कुल हमने इस पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बांग्लादेश वाली सीरीज और हम रेडी हैं। अच्छा जी गफ्फार, अगर आपका क्वेश्चन नहीं हुआ, गफ्फार और उसके बाद बदियुज़्ज़मा। बहुत शुक्रिया इमाद। अस्सलाम वालेकुम बाबर। आसिफ शाह बड़े जबरदस्त परफॉर्मर रहे हैं पाकिस्तान के मादी में, और उनकी बड़ी कारकर्दगी है। जरूर उनके इंजरी का इशू था, कुछ अपडेट कीजिएगा कि सिलेक्टर्स की और आपकी कप्तान की क्या मुशावरत है उनके हवाले से, और वो रिजर्व के अंदर है तो मतलब है शायद वो फिट तो हैं, लेकिन वो 15 में नहीं है। कोई रोल देखते हैं आप इस सीरीज में उनका, क्योंकि इस जहाँ तक मुझे पता है शायद वो अभी टीम के साथ भी नहीं है। शुक्रिया। देखें, यासिर शाह की इंजरी का इशू चल रहा था और थोड़ा फिटनेस का इशू चल रहा था, और उनको कैंप में बुलाया गया था और उन पे काम भी किया गया, और बिल्कुल वो अभी रिजर्व में है और उस पर उनको मजीद काम किया जा रहा है, क्योंकि वो पिछले मेरे ख्याल से 1-2 महीनों में उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, तो उस पर वो उनको बैक टू नॉर्मल लाने के लिए उनको फिटनेस पे काम दिया जा रहा है। और देखें, जिस तरह वन ऑफ द बेस्ट बॉलर हमारा लेग स्पिनर, उसने काफ़ी मैचेस जिताए हैं। बिल्कुल इस पे हमारी नज़र है, और जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होगी हम उनको यूटिलाइज करेंगे, और मेन थिंग ये कि पहले वो अपना 100% फिट हों, फिर हम उनको यूटिलाइज करेंगे। जी बदियुज़्ज़मा। बदी, आपको आवाज आ रही है? T20 आवाज आ रही है बाबर? आ रही है, अभी अब आ आवाज आ रही रही है, है? ब्रेक हो रही है, आ रही है। जी 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 जी। अच्छा बाबर, मेरा सवाल है कि PSL से एकदम टेस्ट मैच में आए,
क्या आप समझते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट में अजहर अली भी मुख्तसर से अरसे के लिए कप्तान रहे, सरफराज ने भी बहुत कम कप्तानी की, 1-2 सीरीज अगर हार जाते तो कप्तान को हटा दिया जाता है, क्या आप समझते हैं कि मैचेस के लिए लंबे अरसे के लिए होना चाहिए ताकि टीम की फतवा समझ दूं और उस परफॉर्मेंस से मैं पाकिस्तान को मैच जिताऊं। और ये चीज मेरे ख्याल से बिलीव यही रखता हूं कि आप अच्छा करते रहें और एज अ टीम आप अच्छा करते रहें तो आपके लिए इजी रहती है। और ये बात की चीजें हैं एक कप्तान नंबर यहाँ साहब के साथ साथ चलती रहती हैं। शाहिद हाशमी और साद अब्बासी प्लीज। शाहिद भाई आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बाबर अस्सलाम वालेकुम। बाबर, 2 चीजें हैं कि ये बताएं कि हसन अली और फहीम अशरफ के ना होने से कितनी कमजोर हुई है टीम, कितना नुकसान होगा, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी एक्सपीरियंस्ड है, उसको कैसा ओपोनेंट देखते हैं आप? डेफिनेटली काफी हमारा जो कॉम्बिनेशन था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है फहीम और हसन की वजह से। और हमें वो फहीम बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में हमें वो कंट्रीब्यूट करता था। और हसन आपको पता है कि उसने काफी मैचेस जिताए हैं और वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। लेकिन कोशिश यही है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन खिलाया जाए। और जिस तरह शहीन, फोमिया, नसीम शाह और हमारे जो बैट्समैन है टॉप बैट्समैन है जिस तरह अजहर अली हो गया और स्पेशली फवाद आलम और रिजवान जिस तरह फॉर्म में है, तो इंशाल्लाह पूरा मैं पूरी उम्मीद हूँ एज ए कप्तान के अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और टफ टाइम देंगे। बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट साइड है ऑस्ट्रेलिया और आप उनको इजी नहीं ले सकते। उनके काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल से प्लानिंग की है उनके अगेंस्ट और इंशाल्लाह आपको अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी साद अपना क्वेश्चन कर लें प्लीज। जी बाबर, साद अब्बासी, रोज टीवी से। बाबर, सवाल मेरा यह है आपसे कि जिस तरह हमने देखा कि 3-4 दिन जब प्रैक्टिस सेशन चल रहा था उस वक्त भी जो पिचेस का मुआयना था वो बड़ी गहराई में जाके किया जा रहा था, और आज जिस तरह जो कप्तान है पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के, उनका भी ये कहना था कि अब तक जो फाइनल 11 है वो सिलेक्ट नहीं की, क्योंकि इस वक्त भी मैं पिंडी स्टेडियम मौजूद हूँ, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। क्या पाकिस्तानी टीम भी जो फाइनल 11 है वो कल ही डिसाइड करेगी या कोई माइंड बना? साथ इसके बारे में सवाल हो चुका है जी। बाबर पहले बता चुके हैं कि कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है इस वक्त और इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। तो काइंडली आप अगर कोई आपका और सवाल है तो वो क्विकली कर लें प्लीज। देखिए ऑलमोस्ट माइंड ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। और आप सब लोगों का इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे। मैं लेट आया था, सॉरी। ठीक, सवाल कर ले, बस कर दो यार प्लीज। एक सवाल है सबका जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सब। थैंक यू, याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।